السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نور۔ پیش خدمت ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کا کلاسک افسانہ موچی۔ چمڑے کے 2 ٹکڑے مونج کی موٹی سی رسی سے سلے ہوئے تھے۔ نادر نے مونج کی سیون کو بھگو کر چمڑے سے کاٹتے ہوئے، تم کہتے ہو یہ چمڑا کسی بڈھے بھینسے کا ہے اور پہلے ہی قدم پر باجرے کی روٹی کی طرح ادھ بیچ سے 2 ہو جائے گا۔ پر پیارے، چمڑے کو ذرا سا بھیگ کر سوکھنے دو، پھر دیکھنا یہ کیسے تمہاری گھر والی کی طرح چیاں چیاں بولتا ہے۔ پیارے نے ہنستے ہوئے ایک پرانا جوتا اٹھایا اور نادر کے پیٹ پر دے مارا۔ الو کو ان دنوں گھر والیوں کے سوا کوئی بات ہی نہیں سوچتی۔ شادی میں یہی کوئی 10 دن باقی ہوں گے، کیوں نادرے؟ بابا اللہ بخش نے پوچھا۔ 10 دن چھوڑ 10 گھڑیاں باقی ہوں، نادر بولا۔ پر بابا، تمہیں کیا؟ شادی تمہاری تو نہیں، میری ہے، تمہارے موچی کی۔ ہٹ تیرے موچی کی، بابا اللہ بخش نے مصنوعی روب میں تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر بے اختیار ہنسنے لگا۔ نادر نے پیار کے پھینکے ہوئے جوتے کو اپنی گود سے ہٹایا تک نہیں۔ بولا، قصور کے جس سوداگر سے یہ چمڑا خریدا ہے، وہ کہتا تھا کہ اس چمڑے کے تلے کا جوتا پہن کر گھر سے نکلو اور ولایت جا کر واپس گھر آ جاؤ۔ گھس گھسا جاؤ تو ہمارا ذمہ نہیں، پر یہ تلا نہیں گھسے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، بابا اللہ بخش نے پیارے کو آنکھ مار کر کہا، کہ جس بھینسے کا یہ چمڑا ہے وہ فولاد کا کشتہ کھاتا تھا۔ پیارا ٹھا ٹھا ہنسنے لگا اور بابا اللہ بخش ذرا ہنس کر اور بہت سا کھانس کر اٹھا اور دروازے میں جا کر گلی میں تھوک دیا۔ نادر سکڑے ہوئے ہونٹوں میں پھوٹتی ہوئی مسکراہٹ سمیٹے مونج کی سیون کاٹتا رہا۔ ایک ٹکڑے کو الگ کر کے اسے سامنے کے صاف ستھرے چوکور پتھر پر اس زور سے بجایا کہ بابا اللہ بخش ہٹ تیرے کی کہہ کر رہ گیا اور باہر منڈیروں پر بیٹھی ہوئی چڑیوں پر جیسے بندوق چل گئی۔ لمحہ بھر کے لیے کچھ ایسا سناٹا چھا گیا جیسے چمڑا نہیں بجا تھا، گولا چھوٹا تھا، بالکل گولا سا چھوٹا۔ بابا اللہ بخش نے ہتھیلیوں میں تمباکو ملتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، گولے بھی چھوٹیں گے؟ پیارے نے نادر سے پوچھا، اور نادر نے چمڑے کے ٹکڑے پر بھیگی دھجی پھیرتے ہوئے کہا، گولے نہیں چھوٹیں گے تو کیا بہن ہوں گے؟ میری شادی ہو رہی ہے، کوئی تمہارے باپ کا جنازہ تو نہیں اٹھ رہا؟ پیارے نے دوسرا جوتا اٹھا کر نادر کے پیٹ پر دے مارا۔ بابا اللہ بخش اب کے سنجیدہ ہو گیا۔ جب سے آیا ہوں بک بکائے جا رہے ہیں جیسے جوانی سارے جگ میں بس انہی 2 پر ٹوٹ پڑی ہے۔ ہنسی مذاق میں کسی کے مرنے کی بات نہیں کرتے، فرشتہ سن لیتا ہے۔ ہم دونوں یار ہیں بابا، پیارا بولا، ہمارا مذاق چلتا ہے۔ ضرور چھوٹیں گے گولے۔ نادر جو زبان پر آئی ہوئی بات اب تک منہ میں سنبھالے بیٹھا تھا، بول اٹھا۔ جمعہ کہہ رہا تھا کہ اب کے لاہور سے بڑے بڑے نئے ڈیزائن کی آتش بازی سیکھ کر آیا ہے۔ کہتا ہے پہلے ایک چنگاری چمکتی ہے، پھر ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے آدھی رات کو سورج کودنے لگا، چنگاریوں کا چھاجوں میں برس پڑتا ہے۔ کہتا ہے آتش بازی بجھنے سے پہلے چنگاریاں آپس میں جڑ کر آگوں آگ پری بن جاتی ہیں، اور جب یہ پری کہہ کہا مار کر ہنستی ہے تو آتش بازی بجھ جاتی ہے۔ لاہور لاہور ہی ہے، پیارے نے داد دی۔ اب تک کسی نے کونے میں دبکے ہوئے نور دادا کو نہیں دیکھا تھا۔ دراصل وہ ذرا سا اونگ گیا تھا۔ نسوار کی ڈبیا میں سے 3 انگلیوں کی چٹکی بھر کر وہ نسوار کو پوپلے منہ کے دور دراز کے کونوں کھدروں میں چھڑک آیا اور بولا، اے نادرے، چپلی کا بدھر مرمت کر کے دیتا ہے تو دے، جب سے آیا ہوں آتش بازیاں چھوڑ رہا ہے، گدھا۔ دادا، نادرے نے بڑی متانت سے پوچھا، یہ بتا ایمان سے کہ جب تیری شادی ہوئی تھی تو کیا تو نے اپنا جنازہ پڑھا تھا؟ جنازہ پڑھوں تیری ماں کا، نور دادا کڑکا۔ ہم نے تو وہ لڈی ناچی تھی کہ ڈھولکیے نے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہا تھا، بس مالکو مجھے بخش دو، تم تو نہیں تھکے پر میرا ڈھول
बजने की जगह छींकने लगा है। दादा, प्यारे ने नथनों और मूंछों में से तंबाकू का गाढ़ा धुआं निकालकर चिलम को नादिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सुना है तेरे सर पर जो सोने का सेहरा बंधा था मांगे का, तो इसकी 2 पतलियां तोड़कर तूने टेबक में उड़स ली थी। नादिर और प्यारा अंधाधुंध हंसने लगे और जब हंस चुके तो नूर दादा ने बड़ी ही मतानत से बड़े ही नरम लहजे में कहा, बरखुरदारो, तुम दोनों नादरे से लेकर प्यारे तक 1 से लेकर 100 तक बड़ी ही विलायती किस्म के हरामजादे हो। एक बार फिर गोला छूटने के बाद किसी खामोशी छा गई, क्योंकि नादिर तो खैर मोची होने की वजह से गाली पी गया, मगर प्यारा मोची ना था। वो नूर दादा की तरह गांव के सबसे बड़े राजा खानदान का भी फर्द नहीं था, मगर वो बाबा अल्लाह बख्श की तरह किसान था और वो गाली मुफ्त में नहीं खा सकता था, देकर खाने की और बात है। बाबा अल्लाह बख्श ने सेहरे की पतरियों की चोरी के जिक्र पर मुंह पर हाथ रख लिया था और सिर्फ गुटकने पर इक्तफा की थी, इसलिए नूर दादा के हल्ले से बच गया था। मगर प्यारे के बिगड़ते हुए तेवर देखकर अपनी बुजुर्गी को मद्देनजर इसने सूरत हाल को संभालना अपना फर्ज समझा। बोला, देख दादा, तू राजा है तो अपने घर में राजा है। राजा शेर खान अगर तेरा कोई दूर नज़दीक का भांजा भतीजा है तो हुआ करे। इस पर मोची लड़के से सारे गांव को बड़ा प्यार है और तेरा भी तो पुराना खिदमतगार है। 8-10 दिन में इस लड़के की शादी है। इस उम्र में तो शादी के ख्याल ही से ऐसा हो जाता है जैसे कोई गुदगुदाए जा रहा है। सो अगर लड़के चहक रहे हैं तो चहकने दे, मैं भी तो तेरी उम्र के लगभग का हूँ। दादा मुझसे भी तो ये चहले कर रहे हैं, ये इनका हक है, ये हमारे बच्चे हैं। और नादरा मोची है तो क्या हुआ, ये बड़ी छोटी बात है कि जो तुम्हें जूता काट कर दे उससे ये भी कहो कि अब जूता चाटो भी। ज़माना बड़ा बदल गया है दादा, बड़े बड़ों की इज्जतें टके सेर बिक रही हैं, गाली ना दिया कर। नूर दादा ने नस्वार भर लुआब यहाँ से वहाँ तक थूक कर कहा, मैं मोची की दुकान पर आया हूँ, मस्जिद में नहीं। बाबा अल्लाह बख्श ने जैसे बिल्कुल बेबस होकर कहा, ये तुम राजों के दिमाग खुदा जाने हमेशा आसमान पर क्यों रहते हैं, चाहे घर में फूटा कटोरा भी ना हो। नूर दादा बोला, लड़ाई की बात करनी है तो अपने बेटों को मेरे बेटों के पास भेज दे, 2-2 हाथ हो जाएं तो तेरी भी तसल्ली हो जाएगी। बात बढ़ गई थी, इसलिए संजीदगी भी बढ़ रही थी। नादिर ने बिजली किसी तेज़ी से नूर दादा की चपली उठाई और आन की आन में वधर मरम्मत कर दिया। और जब नूर दादा चला गया तो नादिर बोला, मैं तो समझा कि अगर अब वधर नहीं गांठता तो नूर दादा मार डालेगा और शादी से पहले बस मंगनी करके मर जाना तो ऐसा ही है जैसे प्यासा शरबत भरे कटोरे को बाहर से चाटकर चलता बने। इसकी बात छोड़, बाबा अल्लाह बख्श बोला, जब से राजा शेर खान से डिप्टी कमिश्नर मिलने आया है सब राजों के दिमाग को कुछ हो गया है। चाहे हल चलाते चलाते एड़ियों में चप्पा चप्पा भर दराड़ें पड़ गई हों। ये बता, अब तक कुछ सामान भी तैयार किया है कि अपने आप को ही तैयार कर रहा है? बुझा हुआ प्यारा फिर से चमक उठा। बीवी से उधार कर लेगा, कह देगा पहले शादी कर ले, फिर जेवरों का भी देख लिया जाएगा। जेवर तो बने रखे हैं। नादिर बिल्कुल बच्चा सा नजर आने लगा। अम्मा पर कैसे कैसे बुरे वक्त पड़े, पर मजाल है जो एक छल्ला भी बेचा हो। कहती है शादी के 1 साल बाद जो जेवर उतारा है तो ये कहकर उतारा है क्या बहू ही पहनेगी। बेटा बरसों बाद मिला, पर बहू का कंगन चूड़ा पहले से तैयार रखा था। जेवर है तो सब गिलट का, पर गिलट भी तो धूप में चमक ही जाता है और कंगन तो चांदी के हैं। मैंने एक दिन पहने थे, मेरे पहुँचों पर भी खुले थे। अम्मा कहती है तेरी मंगेतर बड़े हट काट की वाली है, इसे पूरे आ जाएंगे। पर प्यारे सोचता हूँ अगर उसके पहुँचे ही ये हुए तो बाजू कितने होंगे, वो तो मुझे मार डालेगी। प्यारा हंसने लगा। बीवी बेचारी क्या मारेगी, बाबा अल्लाह बख्श बोला। वैसे नादरे जेवर तो हो गया, पर कपड़े का क्या किया। इन दिनों कपड़ा तो कंजूस का पैसा हो रहा है कि मिला मिला, ना मिला ना मिला।
नादिर के चेहरे पर बहुत सी इकट्ठी रौनक आ गई। वो तो बाबा 6-7 साल से जो आप मालिकों की खिदमत कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ होता हुआ ता ही रहा। ऐसे ऐसे रंग रंगीले कपड़े रखे हैं कि जी चाहता है सब घुंघरियाँ लगी लंगोटें बना डालूं और सारी दुनिया से कबड्डी खेलता फिरूं। आम कपड़ा छूने से मैला होता है, वो देखे से मैले हुए जा रहे हैं। नादिर जरा सा रुक गया, फिर कुछ उदास सा होकर बोला, बस एक मुसीबत मर डाल रही है। अब जब हमने कौड़ी कौड़ी लगा दी है और इधर प्यारे के बाप से 100 रुपया कर्ज भी ले चुके हैं, तो लड़की वालों ने कहला भेजा है कि दूल्हा के कपड़े भी तुम ही बनवा के लाओ, पर किसी को कानो कान पता ना चले कि तुम लाए हो। लाओ और हमें दे दो। हमने कहा के बाद इन कपड़ों को अपना कहकर दूल्हा को पहनाएंगे। इनकार कर दो, प्यारे ने मशवरा दिया। इनकार तो करें यार, पर वो कहते हैं कि इनकार करना है तो वहीं घर में बैठे रहो, बारात ना लाए। बारात लाओगे तो गांव भर के कुत्ते छोड़ देंगे। फिर अल्लाह बख्श ने पूछा, फिर क्या बाबा? नादिर ने भीगी हुई धज्जी को मिट्टी में मसलते हुए कहा, पैसा जमा हो गया ताकि ज़रा गोले वोले चलाएं वलाएंगे, पर इनसे एक रेशमी लूँगी। रेशमी लूँगी? बाबा अल्लाह बख्श ने डांटने के अंदाज में पूछा। नवाब नादिर अली की शादी है ना बाबा? प्यारे ने तंज किया। नहीं यार, नादिर बोला, ये बात नहीं। लड़के वाले कहते हैं कि कपड़े बढ़िया होने चाहिए। कहते हैं कपड़ों के साथ जूता भी हो, और जूता जरी का हो, नोक से एड़ी तक जरी से लुपा थुपा हुआ हो, अंदर तिले पर भी जरी की बेलें हों। और आजकल तुम जानते हो, ऐसा लगता है कि जरी ज़मीन पर नहीं बनती, सूरज से लानी पड़ती है। कसम खुदा की, ये जो चमड़ा काटा है तो जरी लप्पा जूता ही तो बनाने चला हूँ। उन्होंने कहला भेजा है कि कपड़े जूते ऐसे वैसे हुए तो बारात को खाली डोली चलता कर देंगे। बड़े बदजात हैं, बाबा अल्लाह बख्श बोला। आखिर कमीने हैं, प्यारे ने फिक्रा कसा। और नादिर बिल्कुल मुरझा सा गया। ऐसा ना कहो प्यारे, कमीन तो मैं भी हूँ, पर कसम खुदा की, खुदा झूठ ना बुलवाए, कमीना नहीं हूँ। सब कमीन कमीने नहीं होते प्यारे। फूल घोरे पर भी उगाते हैं। फिर वही गोला छूटने के बाद का सन्नाटा छा गया। नादिर निचले होंठ के एक गोशे को अपने दांतों से जैसे चबाने लगा। बाबा अल्लाह बख्श और प्यारा ज़मीन को घूरने लगे, और नादिर ने सामने रखे हुए चमड़े के भीगे हुए टुकड़े पर नजरें जमा दी। इस वक्त तीनों में से कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा था। गली में से एक रोता हुआ बच्चा एक हंसते हुए बच्चे के पीछे भागता हुआ और गालियां देता हुआ गुजर गया। नादिर की बूढ़ी माँ सर पर खड़ा रखे दुकान के दरवाजे के सामने से हाँफती हुई गुजरी, और फिर एक लम्हे को सहन के दरवाजे में से दिखाई दी। चिड़ियों का गौल एक पल के लिए मंडेरों पर उतरा और ज़रा देर को धमा चौकड़ी मचाकर कहीं गायब हो गया। नादिर इस तकलीफ सन्नाटे को तोड़ने के लिए मिट्टी के एक बर्तन को खिसका कर इसमें से तंबाकू निकालने लगा कि अचानक प्यारा बोला, नहीं यार, तू रहने दे, मेरे पास भी तंबाकू है। तेरा तो आजकल एक पैसा 100 रुपए का है। जल्दी से चलम को तंबाकू से भरकर प्यारे ने 1-2 कश लगाए और हुक्का बाबा अल्लाह बख्श को थमा दिया। उसने यूं फीका सा कश लगाया जैसे रस्म अदा कर रहा है। फिर दोनों उठे और अच्छा भाई नादरे कहकर कुछ इस तेज़ी से बाहर निकले जैसे ज़रा सा रुके तो कोई वारदात हो जाएगी। नादिर एक लम्हे तक दरवाजे में से बाहर गली में देखता रहा। फिर उसने पानी में उंगलियों की पोरें डुबोईं और उनको झटक कर चमड़े के टुकड़े पर फुहार से बरसा दी। फिर उस पर धज्जी दौड़ाई और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर तले की हदबंदी करने लगा। बिस्मिल्लाह कर दी? माँ ने सहन वाले दरवाजे में से पूछा। कर दी अम्मा, वो बड़े बेजान अंदाज में बोला। माँ उसके लहजे से चौंक कर अंदर आ गई और दोनों हाथों को उसके दोनों गालों पर रखकर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। नादिर की आंखें भीग रही थीं और वो जब्त करने की कोशिश में निचले होंठ का एक गोशा चबाए जा रहा था। थप्पड़ मारूंगी, माँ ने एक हाथ तान कर कहा। इतनी गुजर गई, अब ज़रा सी बाकी है तो आंसू निकले पड़े रहें। ये जूता जल्दी से तैयार कर लो, फिर देखो क्या होता है। खुदा की ज़ात बड़ी है बेटे, पर इतनी बेपरवाह भी नहीं
कि अपने मोची की शादी इज्जत से ना होने दे। देख लेना, रो मत बेटे, आंसुओं में बिनाई जाती है और जरी के महीन तार के करतब दिखाने वालों की बिनाई जा रहे तो कोई भीख भी नहीं देता। कहते हैं अंधा नहीं है, अंधा बनता है, मुफ्त की ठूंस ठूंस कर अफर गया है। सुना, रो मत। और जब नादिर ने अम्मा की तरफ देखा तो वो आंसुओं से अपनी सारी झुर्रियाँ चमकाए बैठी थी। फिर वो जैसे घबरा कर उठी और सहन में चली गई। जरी का ये जूता तैयार करने में नादिर ने दिन रात एक कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक पन्ना लिए रोशनी के ताक़ुब करता रहता और जहाँ भी ज़रा ज़्यादा चमक कर दिखाई देती बैठ जाता और पतले कागज़ ऐसे चमड़े पर जरी चढ़ाने में यूं डूब सा जाता जैसे ज़मीन सा सिलकर रह गया है। सुई किसी बारीक आर चरचर करती चमड़े में घुसती, नीचे से इसका सिरा ऊपर आता और जरी के तार को नीचे ले जाता। फिर आर और धागे की सुई आपस में उलझकर हट जाती और यूं जरी के बारीक बखिए की एक मंजिल तय होती। रातों को वो कड़वे तेल के चिराग के पास घुसकर बैठ जाता और जब आधी रात को कुम्हारों का गधा पहली बार रेंगता तो माँ मुँह पर से लिहाफ हटाकर कहती, अब सो जाओ बेटे, आधी रात गुजर गई, गधा बोला है। और नादिर माँ को बातों में लगा लेता, माँ ये गधे आधी ही रात को क्यों बोलते हैं? ऐसा लगता है जैसे राजा शेर खां के बेटे की तरह इनके पास भी घड़ियां हैं कि वक्त देखा और रींकने लगे। शरीर कहीं का, माँ कहती। वो बहल जाती या अपने आप को बहला लेती। बहरहाल वो करवट बदल लेती, लेकिन नादिर को बार बार टोक कर इस बात का सबूत पेश करती रहती कि वो अकेला नहीं है। फिर जब पहला मुर्ग बांग देता तो वो कहती, बेटे आजकल रमज़ान शरीफ होता तो इस वक्त मैं सहरी के लिए उठ बैठती। अब सो जाओ, अब नहीं सो तो दिन को कौन आकर जरी चढ़ाएगा, भोले बादशाह। फिर वो सो जाता और सुबह होते ही फिर वही चक्कर शुरू हो जाता। और जिस रोज़ जूता मुकम्मल हो गया और नादिर ने इसमें लकड़ी के कालबूत ठूंस कर उसे धूप में रखा तो बुढ़िया दीवार से लगी बैठी चंगेर में मेहंदी की पत्तियां डाले तिनके चुन रही थी। जूते को देखा तो बिलबिला उठी, इन्हें मेरी आंखों के सामने से हटा लो बेटे, वो चिल्लाई। नादिर लपक कर दरवाजे में आ गया और मुंह फाड़े दम बहुत खड़ा हो गया। हटा लो बेटा, वो बोलती गई। नहीं हटाओगे तो मेरी पुतलियां तलाक से टूट जाएंगी। इतनी उम्र हो गई, खुदा झूठ ना बुलवाए तो जरी के 100-200 जूते अपने हाथों से गुजार चुकी हूँ, पर कसम खिलवा लो जो ऐसी चमक किसी दूसरे जूते की जरी में देखी हो। ऐसा लगता है सूरज 2 टुकड़ों में बंटकर खिड़की में उतर आया है। जरी चमकती है, किरणें नहीं छोड़ती, पर यह जरी तो किरणें छोड़ रही है। यहाँ मुझ तक आ रही हैं किरणें। ये तूने क्या किया बेटे? इतनी सी उम्र में ऐसा हुनर तो बड़े से बड़े मोची से भी तुम्हारे हाथ चुमवा ले। फिर वो भागी भागी आई, दोनों जूते दोनों हाथों से उठाए और उन्हें एक एक बार चूमकर वहीं रख दिया। फिर उसने नादिर के हाथ चूम लिए और बोली, आखिर मेरे हलाली बेटे हो ना। पर अम्मा, नादिर बोला, अब देखो क्या होता है। होता क्या है? बुढ़िया यूं बोली जैसे बेटे का मजाक उड़ा रही। परसों बारात का तमाशा देखने वालों की नज़रें बंद कर रह जाएंगी। तुम्हारे पाँव से चमड़ा तो कहीं से दिखाई नहीं देता, लगता है जूता खालिस सोने का है। मोचे ने नहीं बनाया, सुनार ने सांचे में उतारा है। इंसाफ की बात है। दुआ करो माँ, नादिर फिर उसी लहजे में बोला। पगला, बुढ़िया ने उसका हाथ प्यार से झटक दिया और दीवार के पास जाकर मेहंदी की पत्तियों पर झुक गई। उस रोज़ दिन ढले जब नादिर ने जूतों से कालभूत निकाले तो बुढ़िया बोली, अब ज़रा सा पहन के तो दिखाओ। जूता पहनने से पहले नादिर पर कुछ अजीब डरावनी कैफियत तारी हो गई। फिर उसने जूता पहना तो बुढ़िया बोली, दुश्मन ज़ेर सजन ढेर, काटता तो नहीं? नहीं तो फिर ठीक है, ठीक तो है पर। और फिर नादिर चंगेर में जूता रखे और जूते पर रेशमी रुमाल फैलाए घर से निकला तो बुढ़िया ने दरवाजे पर से कहा, फ़ी अमान अल्लाह। नादिर हो गया और पलट कर बोला, अम्मा अगर वो ना माना फिर क्या? बुढ़िया बोली, तो क्या अब अल्लाह अपने मोची की शादी भी नहीं होने देगा? एक गली में से गुजरा
تو ادھر سے پیارا کندھے پر ہل رکھے ایک نہایت موز اور بیل کی رسی پکڑے بیل کے پیچھے گھسیٹتا ہوا اڑا آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس سے تیزی سے گزرتے ہوئے بولا، مجھے پرسوں کی تاریخ یاد ہے نادرے، میں کل آؤں گا تمہارے پاس، کوئی کام وام ہو تو بتانا، اچھا؟ جیو پیارے، نادر بولا۔ اور یہ کیا اٹھائے لیے جا رہے ہو؟ اس نے بہت آگے جا کر پوچھا اور پھر تیزی سے دوسری گلی میں جا کر مڑ گیا۔ اگلی گلی کے نکڑ پر بابا اللہ بخش ایک مجمع لگائے بیٹھا تھا۔ یہ کیا اٹھائے لیے جا رہے ہو نادرے؟ اس نے نادر کے چپکے سے کھسک جانے کے ارادے پر خاک ڈال دی۔ کہاں چلے؟ بس یہیں تک بابا، نادر نے گول مول جواب دے کر بات ٹالنی چاہی۔ یہ کیا اٹھا رکھا ہے؟ بابا نے پوچھا۔ جوتا، نادر سچ بول دیا اور پھر گھبرا کر جانے لگا۔ وہی جوتا؟ بابا اللہ بخش نے آواز دی۔ ہاں بابا، نادر تیز تیز چلنے لگا جیسے بابا اللہ بخش اس سے جوتا چھیننے آ رہا ہے۔ شادی والا؟ بابا کی آواز بلند ہو گئی۔ نادر دور نکل آیا تھا اس لیے کچھ نہیں بولا۔ ارے کوئی کام وام ہو تو بتانا، بابا پوری شدت سے پکارا۔ نادر چوپال کی طرف مڑ گیا اور بابا اللہ بخش نے ایک موچی چھوکرے کے ہاتھوں بھرے مجمع میں اپنی حد ہوتے دیکھ کر ساری بات کو کہکہوں میں اڑانے کی ٹھانی۔ وہ بولا، شادی سے کچھ دن پہلے آدمی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، شادی کے وقت اصلی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور شادی کے بعد خود گھوڑا بن جاتا ہے۔ لوگ بے تحاشا ہنسنے لگے۔ نادر جب چوپال پر پہنچا تو راجہ شیر خان پلنگ پر کچھ یوں پھیل کر لیٹا ہوا تھا کہ اگر دوسرا پلنگ بھی ساتھ لگا دیا جاتا تو یہ پھیلاؤ اس کا بھی احاطہ کر لیتا۔ آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا اور بات نئے تھانے دار کی خطرناک دیانتداری کی ہو رہی تھی۔ نور دادا کہہ رہا تھا، قتل کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ قتل بھی کوئی کھولنے کی چیز ہے۔ پھر یہ تھانے دار تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ قاتل کس خاندان سے ہے اور کہیں اس کے 10-20 مربع زمین تو نہیں۔ سب کو ایک لاٹھی سے ہانکتا ہے، تھانے کا خدا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، راجہ شیر خان بولا، کہ دشمن چاہے تمہارے سامنے ڈنڈ پیلتا پھرے، تم اسے ٹھکانے نہیں لگا سکتے۔ ٹھکانے لگاؤ گے تو خود ٹھکانے لگ جاؤ گے، چاہے تمہارے پاس سرکاری خدمات کی کتنی ہی سندیں کیوں نہ ہوں۔ اب کے بڑے کپتان کو آنے دو، میں اس کے کان میں یہ بات ڈال دوں گا کہ تھانے دار بے شک اپنا فرض بجا لائے، اور یہ تو دیکھ لے کہ ملزم خاندانی آدمی ہے کہ کمین ہے۔ اچانک راجہ شیر خان کی نظریں نادر پر پڑیں، لیکن وہ ڈھکی ہوئی چنگیڑ سے چونکا نہیں۔ راجہ شیر خان کے ہاں نیا جوتا جب بھی سل کر آیا اسی ڈھب سے آیا۔ لے آئے بھائی موچی؟ اس نے پوچھا۔ جی، نادر بولا۔ لا رکھ دے، پہنا۔ راجہ شیر خان نے اپنے پھیلاؤ کو سمیٹا۔ ایک عرض ہے، نادر نے ہولے سے کہا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بول، راجہ بولا۔ ادھر مالک، ذرا ایک طرف بات کرنی ہے۔ نادر کے چہرے کی زردی کی نلاہٹ نمودار ہونے لگی۔ اچھا۔ راجہ شیر خان زری کے پرانے جوتے کی ایڑیوں کو اپنی ایڑیوں سے روند کر انہیں سلیپر کے طرح گھسیٹتا ہوا چوپال کی کوٹری کی طرف جانے لگا۔ تم بھی پردے میں بات کرنے کی عمر کو پہنچے؟ اس نے نادر سے پوچھا اور پھر پلٹ کر داد طلب نگاہوں سے مجمع پر نگاہ ڈالی۔ لوگ یہاں سے وہاں تک مسکرانے لگے۔ اس کی شادی ہے نا کل پرسوں، اسی لیے نخرہ بڑھ گیا ہے، نور دادا بولا۔ نادر کے سر پر جیسے نور دادا نے پیچھے سے دھول جڑ دی اور دہلیز پر سے ٹھوکر کھا کر کوٹری کے اندر لڑکھڑا کر جا پہنچا۔ اس نے چنگیڑ پر سے رومال ہٹا دیا اور جوتے کو یوں ہولے سے 2 انگلیوں کی پوروں میں اٹھا کر مونڈھے پر بیٹھے ہوئے راجہ شیر خان کے سامنے لے گیا، جیسے ذرا سا جھٹکا لگا تو جوتا کرچی کرچی ہو جائے گا۔ واہ! راجہ شیر خان تڑپ اٹھا۔ دیکھنے میں تو تحفہ ہے، بڑا باریک کام کیا ہے تو نے موچی، بالکل مشین کا کام لگتا ہے، جیسے سونے کی پتری ٹھپا لگا کر چڑھا دی ہے۔ واہ! اب پہنا بھی تو۔ نادر نے راجہ کو جوتا پہنایا۔ راجہ اٹھ کر چند قدم ادھر ادھر چلا اور مونڈے پر بیٹھ گیا۔ اچھا ہے بھائی موچی، بہت اچھا ہے، بہت پسند آیا۔ راجہ جی، نادر نے سمٹ کر بالکل ذرا سا ہو کر کہا۔ کہو، پرسوں میری شادی ہے، وہ بولا۔ وہ تو ابھی نور دادا نے جو بتایا ہے۔ میں نے راجہ جی آپ کی بڑی خدمت کی ہے،
नादिर जैसे हतुल मंतूर अपने मकसद को टालने की कोशिश कर रहा था। फिर मेरे बाप ने तो आपके और बड़े राजा जी के कदमों में उम्र गुजार दी, नादिर ने कहा। हाँ, अच्छा मिटा हुआ कमीन था, राजा ने कहा। बात यह है जी, नादिर रुक रुक कर बोलने लगा, मैंने जेवर कपड़ा सब कुछ तैयार कर लिया। आज कितने बरसों से मैं और मेरी माँ मेहनत कर रहे हैं। कौड़ी कौड़ी करके जो कुछ जमा किया वो लग गया। पहले रुपया बचता था, अब लगता है, शेर खान बोला। अब जी, नादिर के बाद सरगोशी की हद तक गिर गई। लड़की वाले कहते हैं कि दूल्हा के कपड़े भी हमें तैयार कराएं और किसी को पता ही ना चले कि हमने तैयार कराए हैं। कमीन लोग लड़की देने लगे तो ऐसी ही कमीनी बातें करते हैं, राजा शेर खान ने अफलातूनियत छांटी। वो कहते हैं, नादिर बोला, कपड़े ऐसे वैसे भी ना हों, बहुत अच्छे हों, और जूता भी हो जरी का। जरी का जूता? राजा ने पूछा। जी। फिर जी, नादिर ने राजा शेर खान के चेहरे पर से नज़र हटा ली और इसके नए जूते पर गाड़ दी। फिर जी, अगर आपका ये जूता एक दिन के लिए मिल जाए तो नाक रह जाए मेरे घर की। वो राजा शेर खान ने पुराने जूते की तरफ इशारा किया। जी ये, नादिर ने नए जूते की नोक छू ली। यानी तुम मेरा ये नया जूता पहनोगे? राजा गरजता हुआ उठ खड़ा हुआ और फिर दरवाजे पर जाकर जैसे हजूम के सामने तकरीर करने लगा। ये मोची छोकरा मेरा जूता अपने पाँव में पहनना चाहता है यारो। कहता है मेरी शादी हो रही है, ज़रा सा पहन लेने दो कि ठाठ रह जाए। बदजात। हजूम पर गोला छोड़ने के बाद का सन्नाटा छा गया। राजा शेर खान अपने पलंग की तरफ जाने लगा और नादिर कोठरी के दरवाजे में से निकलकर दीवार के साथ जैसे जम गया। राजा बोलता चला गया, मेरा जूता मेरे पाँव और इन कमीनों के सर के लिए होता है। वह पलंग पर जाकर फैल गया। जी चाहता है इसी जूते से चमड़ी उधेड़ डालूं इसकी। कुत्ता, कमीना। फिर उसने मुड़कर नादिर की तरफ देखा और कड़का, इधर मर। नादिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पलंग के पास आ गया। फिर ऐसा हौसला किया तो चिरवा के डाल दूंगा, राजा ने घुड़का। जरा से वक्फे के बाद नादिर बोला, कसूर हो गया मालिक, चल हट यहाँ से। राजा गरजा। नादिर बोला, अगर इस जूते के दाम मिल जाते तो मैं जल्दी जल्दी से अपने जूते का कोई इंतज़ाम। दाम? राजा शेर खान की आवाज़ गूंजने लगी। यानी नकद दाम मांगता है? आज तक राजा शेर खान से किसी ने नकद दाम मांगे हैं जो तुम मांगने चला है? गज़ब खुदा का। 2 पैसे का जूते गांठने वाला और 60 रुपए का जूता पहने बगैर नाक कटी जा रही है। चल दफ़ा हो यहाँ से। मुंशी जी, लिख लो, अगली फसल पर इस मोची को 15-20 रुपए की गंदुम तुलवा देना।